गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948। वी आर स्टडिंग लेबर लॉ। हमें पता है हम लोग लेबर लॉ पढ़ रहे हैं विच इज ऑफ स्पेशलाइजेशन पेपर। आप लोग के एचआर एमबीए एचआर के स्पेशलाइजेशन दैट इज वी आर स्टडिंग द थर्ड सेमेस्टर स्पेशलाइजेशन पेपर दैट इज लेबर लॉ. Labor law is a very important topic. Labor law is a very important subject altogether in HR specialization. As we all know, this is a very common topic. The topics which we are covering, the book that I am referring is from Lovely Professional University, but the topics is same. The students, whoever is doing MBA HR, and the subject, whoever is covering this subject, labor law, either from ICFI, ISWBM, MACAUT, or any university or any state you are referring to, the topic is same, and it would be very important for you all to get a thorough knowledge of Factories Act 1948. इधर थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली ये टॉपिक आप लोग सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बिफोर वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. सो द टॉपिक फॉर टुडे इज फैक्ट्रीज एक्ट 1948. आज का जो टॉपिक है दैट इज फैक्ट्रीज एक्ट 1948. हमने पहले ही पढ़ा था जो लेबर लेजिस्लेशन के इम्पोर्टेंस हम समझ चुके हैं. व्हाट इज लेबर लेजिस्लेशन के जो क्लासिफिकेशन है दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन. द 5 टाइप्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन जो हमने डिस्कस किया है लास्ट सेशन में. सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फैक्ट्रीज एक्ट 1948. So the basic objective of studying this chapter is we have to understand the historical development. ये फैक्ट्री लेजिस्लेशन आई कहाँ से है, इसका डेफिनेशन, इसके ओवरऑल अगर आप लाइसेंसिंग देखो, रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, इसके हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स क्या है एम्प्लॉयज़ के लिए. एक फैक्ट्री में देखो, अगर आपको एक फैक्ट्री चलानी है इधर एज अ एंटरप्रेन्योर और एज एन एचआर मैनेजर और एज एन एचआर प्रोफेशनल, यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दी इन एंड आउट्स ऑफ योर फैक्ट्रीज एक्ट. इसके बिना आप कंपनी नहीं चला पाओगे. So let us start with the introduction. In the previous unit, we dealt with the concept, origin, objectives, and classification of labor law. ये हम लोग already कर चुके हैं. The Factories Act is the principal legislation which governs the health, safety, and welfare of the workers in factory. Very clear that Factories Act, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है that it is Factories Act. तो जब Factories Act है, so it is governing the entire condition related to a factory. If you are managing a factory, you should know how to govern the health, the safety condition, what are the principal situation that should exist in a factory. The principal legislation, the legislations, what is legislation? It is all about the laws, the rules and regulations. So once we are talking about laws, rules and regulation, it will become a legislation. So all the legislation. So if we are discussing about Factories Act is the principal act which govern the health, safety, welfare and the workers in factory. The act extends to whole of India. Mines and railways workers are not included. Mines and railways workers are not included because they are covered by the separate act. They have Mines Act and Railways Act are there. The new act address the issues of safety, health and welfare. So Factories Act is also covering the health, safety and the welfare. Many amendments were aimed to keep the act in tune with the developments in the field of health and safety. However, it was not until 1987 that the elements of occupational health and safety and prevention and protection of workers employed in hazardous processes got truly incorporated in the act. दिस इज क्वाइट ट्रू. जब हमारे फैक्ट्री एक्ट इम्प्लीमेंटेशन हुए थे, तो फैक्ट्री एक्ट आई थी हमारे इंडिया में. अगर आप इसका हिस्ट्री स्टडी करो तो फैक्ट्री एक्ट आई थी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स या फॉरेन जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहाँ पर थे, उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए. आप अगर इसकी हिस्ट्री पढ़ोगे देखोगे उन लोगों ने कोशिश की थी, जो हमारे फॉरेनर्स जो हमारे यहाँ पे कंपनी ऑपरेट करते थे, दे वर ऑपरेटिंग टेक्सटाइल कंपनीज इन इंडिया. और हमारे इंडियन जो टेक्सटाइल कंपनीज थे मेनली बॉम्बे और गुजरात वगैरह में, वहाँ जो कॉटन टेक्सटाइल कंपनीज थी, दे वर हैविंग अ वेरी टफ कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हमारे इंडियन कंपनीज में लेबर को उतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं दी जाती थी और चीप लेबर अवेलेबल थे, तो कॉस्टिंग बहुत कम होती थी हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स की. सो जस्ट फॉर रनिंग अप विद द कंपटीशन इन ऑर्डर टू हैव अ कॉम्पिटिटिव सिनेरियो कि भाई नहीं, उनको वो इंडियन जो जितने भी कंपनीज थे उनको एक टफ एक कंपटीशन देने के लिए फैक्ट्रीज एक्ट इम्पोज किया गया था. तो मेनली द पर्पस फॉर दैट वाज, इंटेंशन वाज दिस कि वो कंपटीशन दे.
पर्पस ये नहीं था कि वर्कर्स को सुविधा दी जाए, उनका पर्पस ये था। बट जो भी हो, जिस भी कारण से हो, फैक्ट्रीज एक्ट जब इम्प्लीमेंट हुई तो धीरे धीरे वर्कर्स के कंडीशंस पे भी सुधार हुआ। और अंटिल 1987 बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, वर्कर्स की बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं थी। इवन जो टी प्लांटेशन एक्ट वगैरह आया था वहाँ पे तो और भी बुरी हालत थी वर्कर्स की। उनको मतलब वो एंटायर जितने भी पुराने जो ट्रेडिशनल आप देख लो लेबर लेजिस्लेशंस थे, आप हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ही था, तो सारा मेन फोकस था कि एम्प्लॉयर के बेनिफिट्स को देखा जाए, क्योंकि सारी चीजें कैपिटलिस्ट मूव के ऊपर थी, सब चीज कैपिटलिस्ट मोटिव के ऊपर था। सो द मेन मोटिव वाज प्रॉफिट मोटिव, वहाँ पे एम्प्लॉय का कोई कंसर्न नहीं था पहले। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि अंटिल 1987 द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, मतलब एम्प्लॉय की तरफ कोई कंसर्न नहीं था, एम्प्लॉयर वाज द मेन कंसर्न। The purpose of this until is to enable the students to comprehend basic expression. So now we are understanding the basic things about everything about Factories Act, historical developments of factory legislations. With the establishment of a cotton mills in 1851 and a jute mill in Bengal in 1855, modern factory systems were found in India. हमारे इंडिया में जो मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम आई थी दैट वाज ओनली आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉटन मिल्स एंड जूट मिल्स इन बंगाल। ठीक है, वुमेन एंड चिल्ड्रन वेर एम्प्लॉयड, दे वर एक्सेसिव एंड लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, जो मैं अभी बता रही थी, विद अ लिटिल रिक्रेशन। द एम्प्लॉयज यूज्ड टू हैव देयर वे। In 1881, Indian Factories Act was passed, which gave protection to the employees, especially to the children. The Factory Commission was appointed in 1890 by the Government of India. 1851 में आपके जूट मिल और कॉटन मिल स्टार्ट हुई। एक्सप्लॉयटेशन एम्प्लॉयज के ऊपर वहीं से शुरू हो गया, एक्सेसिव प्रॉब्लम शुरू हो गई। बट आपके देखो 30 साल बाद 1881 में अप्रॉक्स 30 ईयर इंडियन का फैक्ट्रीज एक्ट वाज पास। उसके बाद आपके 30 साल बाद ही फैक्ट्रीज एक्ट पास हुआ, जो एम्प्लॉय को कुछ प्रोटेक्शन देने के लिए था, फॉर स्पेशली टू चिल्ड्रन। देन इन 1890 आप देख लो 40 इयर्स बाद फैक्ट्री कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1890 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। On the basis of the recommendation of the commission, an act was passed in 1891. अब on the basis of the फैक्ट्री कमीशन जो कि 1890 में इम्प्लीमेंट हुई थी, उसके हिसाब से कमीशन एक्ट बनाया गया इन 1891। आप देख लो इंडिया में किस तरीके से स्टार्ट हुआ। 1851 में कंपनी आई, एक कॉटन मिल खुला, एक जूट मिल खुला बंगाल। तो आप समझ लो जब 1851 में कंपनी शुरू हुई और 1855 में जूट मिल बंगाल में, तो एक मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम फॉर्मेशन हुआ। तो 1850 से ही मैं ले लेती हूँ, उस दौरान से ही वुमेन और चिल्ड्रंस वेर एम्प्लॉयड, तो उनके तो एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहे थे उस टाइम से ही। बट 1881 में एक फैक्ट्री एक्ट शुरू हुआ, फैक्ट्री एक्ट वाज पास्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एम्प्लॉय। उसके बाद फैक्ट्री एक्ट आपके आई 1881 में, फिर 1890 में फैक्ट्री कमीशन वाज अपॉइंटेड। फैक्ट्री कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1890, एक कमीशन फॉर्मेशन हुआ था कुछ लोगों को मिला के, एंड दे proposed a commission act to be formed in 1891, maybe देखो after 40 years gap, whereby the definition of factory was amended to include premises in which 50 persons or more were employed। मतलब एक फैक्ट्री को डिफाइन किया गया कि एक फैक्ट्री वो जगह है, एक प्रेमाइसेस है जहाँ पे 50 या 50 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। The local governments were empowered to extend it to premises in which 20% or more were employed. Local governments को empower किया गया to extend it to premises in which 20% or more were employed. लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया कि आपके वहाँ पे अगर 20 या 20 लोगों से ज़्यादा आप एम्प्लॉय कर रहे हो, उस प्रेमाइसेस को भी एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग फैक्ट्री के एक्ट में। There were provision about women employees and hours of work for them were limited with the provision for 30 minutes interval for rest। मतलब वुमेन एम्प्लॉयज और आवर्स ऑफ वर्क के लिए भी कुछ प्रोविजंस आए थे और 30 मिनट का इंटरवल फॉर रेस्ट दिया गया। The act was amended from time to time. It was amended twice in 1923 and 1926. The act was thoroughly revised and redrafted in 1934 on the lines of recommendation made by the Royal Commission on Labour, which was appointed in 1929। अभी देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक्ट की अमेंडमेंट कैसे कैसे आ रही है। ये स्टार्ट हुआ 1851 में, आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हो रही है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वहां से स्टार्ट हुई। फिर आपके एक्ट की अमेंडमेंट हो रही है, देन इट वाज अमेंडेड ट्वाइस, 23 में, 26 में। थॉरोली एक रिवीजन या रीड्राफ्ट हुआ आपके लेबर फैक्ट्री एक्ट का इन 1934 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन लेबर। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट 1934
was several times amended, and then the new acts of 1948 was passed. 1934 Act of 1934 was amended several times, and then the new Act of 1948 was passed. Under the 1934 Act, provincial government had power to apply the act to the establishment where the power was used and when more than 10 persons were employed. अब देखो यहाँ पर आ गया अंडर 1934 प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आपके जो पुराने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थे उनके पास ये पावर थी टू अप्लाई द एक्ट टू द एस्टेब्लिशमेंट वेयर द पावर वाज यूज्ड। पावर मतलब आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, पावर जो कोल यूज हो गया, इस तरह के वहां पे आप इंक्लूड कर सकते हो वेयर मोर देन 10 पर्सन्स वेर एम्प्लॉयड। मैंने पहले हमने फैक्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी कि 50 लोग जाओ, फिर देखा गया जहाँ पे पावर जनरेशन है वहाँ पे 10 लोग। It reduced the hours of work and aimed to improve the working condition in factories. Provisions were also made for adequate inspection and enforcement of the act. अभी धीरे धीरे वर्किंग आवर्स के ऊपर ध्यान देने लगा है, किस तरीके से वर्किंग कंडीशन को इम्प्रोवाइज किया जाए उसके ऊपर देखा गया, एंड डिफरेंट प्रोविजंस वे आल्सो मेड फॉर एडुकेट इंस्पेक्शन एंड enforcement of the act. In the year 1948, Factories Act 1934 was revised and its scope extended to include welfare, health, cleanliness, overtime payments and their similar measures. अभी जो 1948 में जो फैक्ट्रीज एक्ट 1934 was revised, मतलब 1934 से इतनी बार रिवीजन होने के बाद अभी आपका 1948 में जो रिवीजन हुआ एक्चुअली वहां पे इट एक्सटेंडेड टू इंक्लूड वेलफेयर। अभी ओवरऑल आप 1948 में देखो बहुत अच्छा सा रिवीजन हुआ जिसमें इंक्लूड किया गया वेलफेयर, हेल्थ, cleanliness, overtime, payments, and similar measures. The Factories Act was to ensure proper, safe, and healthy working condition in the factory so that the workers may feel interest and while in factories devote their time and labor in the working process of the factory without being afraid of bodily strain and without fear and danger of accident. The act was amended periodically up to 1976. देखिए जो हमारे पुराना एक्ट था 1934 का, वो अमेंडमेंट जो बेसिकली आपके इंडिपेंडेंस के बाद हुआ 1948 में, वहाँ पे यहाँ पे एक प्रॉपर मेजर लिया गया जहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रॉपर और एक सेफ वर्किंग कंडीशन हमारे फैक्ट्री वर्कर्स को दिया जाए, जहाँ पे देखिए अगर हम अपने वर्कर्स को यहाँ पे वर्कर्स को क्या दिया जा रहा है, एक सेफ कंडीशन, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट जहाँ पे वो बिल्कुल विदाउट बीइंग अफ्रेड, वो बिल्कुल डर नहीं है उसको कि भाई कहीं पे लग जाएगी, चोट आ जाएगा, इस तरह का। The act was amended periodically up to 1976. तो ये 1948 में अमेंडमेंट हुआ, फिर धीरे धीरे 1976 तक अमेंडमेंट हुआ. By this time, a very large number of chemical factories have been set up involving the manufacture and handling of hazardous and toxic chemicals. This brought in more problems of safety and health. अब धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रीज भी सेटअप हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग ऑफ हजार्डियस एंड टॉक्सिक केमिकल्स आर ब्रॉट इन। अब जैसे जैसे आपके केमिकल्स बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, हेल्थ हैजर्ड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। By the time government could access the possible impact of the problem and foresee the possibilities of major disasters, the world's worst tragedy shocked Bhopal, wiping out in hours thousands of innocent, ignorant lives and rendering many more incapacitated. In 1987, Factories Act 1987 was passed, a memorial to the victims of Bhopal. हमें भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पता है क्या हुआ एक्चुअली। 1976 के बाद देखा गया धीरे धीरे बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स फैक्ट्रीज भी सेटअप हो रही थी और गवर्नमेंट को ये समझ में भी आ रहा था कि किसके पॉसिबल इम्पैक्ट क्या हो सकते थे। मतलब अगर आप केमिकल फैक्ट्रीज सेटअप कर रहे हो तो एक नॉर्मल फैक्ट्रीज एक्ट में जो है नियम और केमिकल फैक्ट्री में वो डिफरेंट होगा, बट उस टाइम तक गवर्नमेंट ने कुछ भी इनिशिएटिव नहीं लिया था अंटिल द भोपाल गैस ट्रेजेडी में जिसमें हजारों लोग मर गए, इनोसेंट लोग की लाइफ गई और नॉट ओनली जो अंदर थे वो बाहर ही लोगों के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, क्योंकि भोपाल जो ये आपके गैस ट्रेजेडी हुई थी, जो फैक्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड प्लेस में थी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी, उतने पॉपुलेटेड एक प्लेस में अगर एक केमिकल फैक्ट्री होगी तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो तो नो डाउट आपके पूरे एनवायरनमेंट को ले डूबेगा। तो ऐसा ही हुआ था। So 1987 Factories Amendment Act was passed, a memorial to the victims of the Bhopal. It provides better safeguards in the use and handling of hazardous substances in factory. अब ये जो 1987 में जो फैक्ट्रीज एक्ट में अमेंडमेंट हुए थे
बिकॉज ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, वहाँ पे एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड सेट किया गया कि किस तरीके से फैक्ट्री में हजार्डियस सब्सटेंसेस को यूज किया जाए. It calls upon the management to provide for greater safety measures, including precautions regarding the use of portable electric light in the factories, appointment of safety officers in factory where 1,000 or more workers are employed. मतलब यहाँ क्या क्या चीजें आ गई नहीं, एक पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट आपको रखनी है इन दी फैक्ट्रीज, अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर जहाँ पे 1,000 या 1,000 से ज्यादा लोग हैं, और वेयर इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ऑपरेशन इज कैरिड ऑन which involves any risk of bodily injury, poisoning or disease or any other hazard to health to the person employed in the factory. The amended act also provide for investigation. अब ये amended act जो हुआ था, इसका भी एक investigation की जरूरत थी, of investigation of all fatal accidents within a month of their occurrence. ये जब आया, ये जब एक्ट आया, इसके बाद इसमें ये भी था कि भाई जितने भी fatal accidents हुए हैं विद इन अ मंथ of occurrence, उसके सारे की जानकारी प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन. It also empowered the chief inspector or director general of factory advice service and labor institute as the director general of health services to the government of India or such other officer as may be authorized by them to undertake safety and occupational health service. ये जो 1987 में एक्चुअली भोपाल गैस ट्रेजेडी ने पूरी तरह से इसको मतलब इंडिया के जो इंडियन हेल्थ सिनेरियोस था या इंडियन जो फैक्ट्री सिनेरियो था पूरा उसको मतलब एक ये कर दिया, एक नई तरीके से इसको रिवोल्यूशनाइज किया. रिवोल्यूशनाइज करने का मतलब क्या, पूरी तरह से लोगों के दिमाग में बैठ गया कि इतना गलत हुआ था, तो उसके लिए एक सेफ्टी ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर हेल्थ हेल्थ सर्वेज, मतलब सर्वे होने से क्या पहले से ही सारी चीजें चेक होती रहेंगी. मैं भी जब मैं डेप्यूटी मैनेजर थी एचआर में, डिफरेंट काम बड़े बड़े कंपनीज में मैं भी रह चुकी हूँ, तो हमने देखा है कुछ साल पहले, मे बी लास्ट 10-14 ईयर्स पहले की बात कर रही हूँ मैं, उस टाइम में आते थे इंस्पेक्टर्स आते थे और हमारे पास पेपर्स नहीं होते थे. बहुत सारी कंपनीज है कोलकाता में से छोटे मोटे, कुछ हम लोग कुछ कंपनीज के मालिक ने पैसे वैसे दे दिए, वो हो गया, सेटलमेंट हो गया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं. तो इस तरीके का अगर इंस्पेक्टर होगा तो नो डाउट कोई काम का नहीं होगा. बट अगर ये प्रॉपरली आप सर्वे करो, अगर पहले से सारी कंपनीज का प्रॉपर सर्वे होता रहेगा जैसे इस तरीके से हुआ, तो उसके बाद क्या एम्पावर किया गया एक चीफ इंस्पेक्टर और डायरेक्टर, मतलब आपके एक जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विसेज के लिए जो हेल्थ सर्विसेज की एक सर्वे करेगा, अंडरटेक सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे, इस तरीके का मतलब वो एक लेबर इंस्टीट्यूट से अपॉइंट किया जाएगा चीफ इंस्पेक्टर और द डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री सर्विस, फैक्ट्री एडवाइस सर्विस के लिए, जिसका काम ही होगा, मतलब ये स्पेसिफिकली फैक्ट्रीज एक्ट को रेलेवेंट करके है, जहाँ पे दे वुड अंडरटेक अ सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे, जहाँ देखा जाएगा. अब ये प्रॉपर्ली चेक होगी तो कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, कोई फैक्ट्रीज में हेल्थ रिलेटेड हैजर्ड रहेगा ही नहीं, अगर रहेगा तो वो पकड़ा जाए. The act also brought under its protective clauses the contract labor as also any other category of labor employed directly or through any other agency with or without the knowledge of the principal employer, whether for remuneration or not. The amended act further prescribed the provisions of crèche facility in every factory wherein more than 30 women workers instead of 50 as provided in the principal act are ordinarily employed. यहाँ पे क्रेच फैसिलिटी की भी बात की गई है, किसी भी फैक्ट्री में अगर 30 से ज़्यादा औरत है, वुमेन वर्कर्स हैं, तो वहाँ एक क्रेच फैसिलिटी होनी चाहिए बच्चों के लिए. अकॉर्डिंग टू द एक्ट, इफ अ वर्कर इज डिस्चार्ज और dismissed from service or quits his employment or is superannuated or dies while in service during the course of the calendar year, he or his or her or nominee, as the case may be, shall be entitled to wage in lieu of the quantum of leave due. मतलब जितने दिन की उसकी लीव ड्यू है उतना सैलरी उसको मिल जाएगा उसको. The amended act also provide for modified rates of general penalty for offence and enhanced penalty for after previous conviction. देखो, besides amendments to section 2, 4, 9, 13, ये इतने सारे amendments हैं scheduled to the Principal Act, the amended Act of 1987 also provide for omission of section 100 of the Principal Act and insertion of new section 7A, 713, substitution of new section for section 36 and 38, insertion of a new chapter 4A after chapter 4, and the insertion of two new schedules before the schedules to the Principal Act. The newly inserted section that is 7A, 7B, 87A, 96A और ये जितने भी relate to the general duties of the occupier, general duties of the manufacturers, etc. regarding articles and substances for use in factories, power to prohibit employment on account of serious hazard,
पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजंस, ये आपके कुछ कुछ अमेंडमेंट्स है जिसके बारे में डिटेल्स में दिया गया है। जो जो अमेंडमेंट्स हमारे लिए जरूरी हैं हम लोग वो सारे पढ़ेंगे। वी विल नॉट गो थ्रू ऑल द अमेंडमेंट। The new section 36 and 38 relates to the precautions against dangerous fumes, gases, etc. and precaution in case of fire respectively. ये सेक्शन 38 और 38 और 36 और 38 जो है ये मेनली आपके प्रिकॉशंस को लेकर है। जैसे किसी फैक्ट्री में डेंजरस फ्यूम्स है, गैसेस हैं, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस ली जा सकती है। The new chapter 4A inserted after chapter 4 of the Principal Act includes the following provision relating to the hazardous process. Constitution of site appraisal, यहाँ पर आपके साइट का अप्रेजल की बात हो रही है, मतलब साइट को अप्रेज किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर, कंपल्सरी एक डिस्क्लोजर होना चाहिए। जो चीज जो वहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो एक सारे डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स देंगे, भाई कौन कौन है या क्या काम हो रहा है, एवरीथिंग। स्पेसिफाई स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर इन रिलेशन टू हैजर्डियस प्रोसेसेस। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंक्वायरी कमिटीज, यहाँ पर एक एडिशनल पावर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इंक्वायरी कमेटी बिठा सकती है। इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स आर देयर। परमिसिबल लिमिट्स ऑफ एक्सपोजर्स ऑफ केमिकल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस, हर एक जो जितने भी केमिकल्स हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं आपकी फैक्ट्री में अगर यूज हो रहे हैं उनका एक परमिसिबल लिमिट दिया। आप कितना सोडियम यूज कर सकते हो, कितना आप सल्फर यूज कर सकते हो, हर का एक परमिसिबल लिमिट, कुछ भी अपने हिसाब से यूज नहीं कर सकते, इसका एक स्टैट्यूटरी रूल्स है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट, राइट्स ऑफ वर्कर्स टू वार्न अबाउट इमिनेंट डेंजर, वर्कर्स का एक राइट है कि भाई कहीं पे भी डेंजर है तो वो इन्फॉर्म कर सकते हैं। The new schedules inserted before the schedule to the Principal Act include the list of industries involving hazardous processes and permissible levels of certain chemical substances in the working environment. All the provisions of the Factories Act 1987 came into force with effect from 1st December 1987, except the schedule containing list of notifiable disease and section 7 to 13 and 41A, which came into force with effect from 1st June 1988. तो ऑलमोस्ट ऑल दी अमेंडमेंट, जितने भी अमेंडमेंट हुए थे वो 1 दिसंबर से इम्प्लीमेंट हो गए, एक्सेप्ट सेक्शन 7 to 13 and 41 एक्ट जो जून से आया था। Now we'll start with the object of the act, the scope and applicability in the next day. Today we have done with the history of the Factory Act, so we will be discussing about the object figures next.